Alright जी, email की तरफ चलते हैं. Hi Julian bhai, my name is ABC. I regularly listen to your Ask Ganji Swag podcast and I truly admire your talent for articulating solutions to complex life challenges. I find your show to be quite unique and deeply connected to the South Asian community. You're an excellent storyteller and a composed individual with a nice value system, which is quite rare these days. Please continue this fantastic work. Thank you. I'm originally from Kolkata, India, and have been in the US for the past 12 years. In my mid 40s, I work as a senior manager at a well known tech company here. Currently on an H1B visa. I've been waiting for my green card since 2018, but with the long backlog of for Indian applicants, I'm losing hope of receiving it anytime soon. It seems unlikely that any significant immigration reform will occur. I reside in the state of Texas with my wife and our teenage daughter who is in the 8th grade. Over the last 12 years, I've managed to save considerably and control my spending habits, avoiding the pressure to show off. My disciplined investments have generated a good corpus allowing me to envision a happy life in India. My funds should be sufficient to support my child's foreign education while I retire in India, and my investments yield an average of CAGR of 15%, which now matches my active income and continues to grow. CAGR होता है compound annual growth rate, ठीक है ना? तो इनका 15% है, विच इज़ माशाल्लाह रियली रियली गुड. इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए और 5 साल में वो $15,000 हो गए, तो आपका जो CAGR है वो निकलेगा लगभग 8 पॉइंट समथिंग परसेंट. इसका होता फॉर्मूला ये है कि आप जो एंडिंग वैल्यू है, यानी आज जो आप खड़े हो, वो ऊपर आएगी $15,000, बिगिनिंग वैल्यू नीचे आएगी $10,000 ब्रैकेट एंड 1/n, यानी n जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है, -1. दैट इज द एंटायर फॉर्मूला. और फिर इसको आप करोगे तो ये आपको एक एवरेज ग्रोथ रेट दे देगा कि आपका एनुअल ग्रोथ रेट इस हिसाब से जा रहा है. So 15% is really, really good. I've also purchased a house in Texas. From an outsider's perspective, it appears that I'm living the American dream. But internally, I feel a constant storm of stress. I'd like to share my situation with you and get your insight. As I mentioned, I'm a non-immigrant visa. I'm on a non-immigrant visa, which makes me vulnerable to layoffs. If that were to happen, I would need to leave the USA within 60 days. The tech sector has seen frequent layoffs this year and the pressure at work is increasing. I want to escape this anxiety and no longer wish to stay in the US, but I worry about my daughter will adjust to life in India at 14, especially considering she has limited experience with its social challenges, education system, and the environment. She's visited India a few times but has felt uncomfortable with the crowds and cleanliness. This dilemma leaves me with a sense of guilt, leading me to convince myself to stay in the US until she attends college, which is about 4 years away. At this moment, I find myself at a crossroads, struggling to make a decision, which is causing me anxiety, depression, and restlessness. The corporate pressure is significant, and I frequently discuss these feelings with my wife. She is very supportive and believes we should stay in the US. I have no strong desire to accumulate more wealth as material pleasure are fleeting. I value family and relationships and I want to stay connected to my roots while also ensuring my daughter's future is secure. My mind is in turmoil and I'm unsure what steps to take next. Planning a structured exit from the US would provide us with more flexibility compared to an unplanned layoff situation. Thank you for taking the time to read my email. I strongly believe that uh, I'm not in this boat alone. Many fellow NRIs of my age are having the same dilemma. I would greatly appreciate your thoughts and insights that may help many like myself. Best regards. So ये एक NRI है, इंडियन नॉन इंडियन रेजिडेंट जो है, जो H1B वीज़ा पे हैं. और H1B वीज़ा जो है ये इस पे सॉरी, ये आपकी नेचुरलाइजेशन में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप इंडियन हो, क्योंकि इंडियंस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है. चूँकि इंडियंस आर एट द हाईएस्ट एंड ऑफ H1B वीज़ा. मैं ज़रा इसका वो निकालता हूँ ब्रेक डाउन. ChatGPT क्या चीज़ है यार. एनुअल कैप जो है 65,000 है. वॉल्यूम इसका फिजिकल, अरे यार इसने हर साल का अलग अलग दे दिया है. टोटल अप्रूवल्स की अगर मैं आपको बात करूं तो 2000 फिजिकल ईयर 2000 में 2.5 लाख अप्रूव हुए थे. फिजिकल ईयर 2010 में 2 लाख, 2020 में 4.25 लाख, 2023 मतलब हर साल 4 लाख का एवरेज चलता आ रहा है, राइट.
अब इसमें जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस score the H-1B visa every year. Wow, 77%. In 2022, Indian national received about 77% of the 320,000 approved H-1B visa. Wow. This trend underscores the substantial representation of Indian professionals in the US skilled labor market. So इसी पे तो लड़ाई हो रही है, ये जो इलॉन मस्क और ये सब लेके चल रहे हैं, जो इंडियंस को इतना टारगेट कर रहे हैं. Anyway, so अब देखे ना, हर साल एक ही मुल्क से अगर 2 लाख 2.5 लाख H-1B वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं तो फिर वो कितना बैकलॉग होगा. और फिर पिछले 10 15 20 साल का, या फिर लेट से अगर पिछले एक डेकेड का भी है, तो ये आराम से 20 25 लाख लोग हो गए. तो इट टेक्स टाइम. तो इनका जो फेयर है वो लेजिट है, कि उसमें कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र नहीं आ रही. कब होगा, कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, टाइम नहीं होगा. एंड गिवन द ले ऑफ्स बहुत होते हैं टेक सेक्टर में, बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड लाइक इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन टोज. और वही दुबई वाला सीन है. दुबई में जब आपको एक बार फ़ोन आ जाता है कि भैया आप पैक करें, आप वापस जाएं, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता. आपको फिर औने पौने सब कुछ बेच के जाना होता है. तो इसमें भी 60 डेज़ का टाइम मिलता है अगर आपका ले ऑफ हो गया. अब एक जो बेसिक चैलेंज है वो ये है कि बेटी से रिलेटेड, बेटी 14 साल की है, और वो जाहिर है जो बच्चे बाहर पले बड़े होते हैं उनको एडजस्ट करने में बड़ा मसला होता है. अच्छा, फाइनेंशियली ही साउंड, जैसा कि आपने सुना कि इनका सेविंग्स भी सही है और कोई मटेरियल्स की डिज़ायर भी नहीं है. एंड ही वैल्यूज़ रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग्स मोर. और यही इवेंचुअली इंसान का गोल होना चाहिए, क्योंकि बिस्तर मर्ग यानी डेथ बेड पे नो बडी सेज आई विश आई हैड वर्कड अ लिटिल मोर. सब यही कहते हैं कि आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली. सो फैमिली शुड बी योर फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है. अब रही बात कि यू आर हैप्पी टू मूव बैक. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट मेंड समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन. ठीक है ना. जब आएगी तो देखी जाएगी. अभी ये कि एक चीज आई नहीं है और उसके पैनिक में अपना भी दिन खराब करना. देखें, कंसर्न होना बिल्कुल सही है, आपका राइटफुल कंसर्न है. इट्स अ सीरियस इशू, राइट. ये इंसान को, जब ये अनसर्टेनिटी इंसान को खा जाती है, कि जब उसको पता ना हो कि वो कहाँ है, आज कहाँ है, कल कहाँ है. इंसान हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढता है. ठीक है. और औरत भी जो है ना, हमेशा मर्द ही वही ढूंढती है कि जो उसको स्टेबिलिटी दे, क्योंकि women आर क्वाइट हाई ऑन इमोशंस. शी wants someone who can tame, and eventually she wants to tame the guy. पता नहीं क्या अजीब साइंस है. एनीवे, तो स्टेबिलिटी कि यार बस मैं यहाँ हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरी रियलिटी है टिल द एंड ऑफ टाइम्स, राइट. तो इंसान बड़ा शांत रहता है. जब पता ही ना होना कि यार आज मैं आऊँ, कल को फिर ये समेट के भागना ना पड़े, तो टेंशन लेजिट है. हाउएवर, उस टेंशन में रोज रह रह के अपनी सेहत खराब करने से बेहतर है कि जब आएगी तो देखी जाएगी. कंटिजेंसी प्लान आप एक बना ले, वाइफ के साथ डिस्कस करके, बैक होम फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके कि यार खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे या भगवान ना करे, अगर कोई इस तरह का मामला है तो 60 दिनों का मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा. एंड देन आई एम हेडिंग बैक टू ईदर कोलकाता. एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू कोलकाता. यू कैन गो टू पुणे. आई हैव हर्ड इज रियली गुड. You can try even that. Try opening up a company. Like, take your expertise back home. You're on a very safe, mashallah, Allah touch wood, नजरे बद से बचाए अल्लाह, के स्टेबिलिटी इज देयर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज देयर. आई एम श्योर आपको यू नो स्टफ अबाउट योर ओन. मतलब आप अगर H-1B स्कोर किया है आपने, तो आप अपने काम में भी अच्छे होंगे. और टेक सेक्टर का तो फिर आपको पता है, इंडिया इज जस्ट एज गुड एज एनी अदर कंट्री आउट देयर जो कि लीड कर रहे हैं टेक में. आई एम श्योर यू कैन स्टार्ट अप अ कंपनी और हैव अ स्टार्टअप, और वहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर ओन जर्नी. रही बात बेटी की, हाँ, बच्चे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उनको मसला होता है. वो एक बड़ा कल्चर शॉक है. देखिए, 15 दिन नाना नानी के घर जाके या दादा दादी के घर जाके रहना एक चीज़ है. उस सिस्टम में रहना, सरवाइव करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, फिर वहाँ के 10,000 मसले, हरासमेंट भी है, लैक ऑफ क्लिनलीनेस भी है, सिविक सेंस नहीं है लोगों में, बेसिक मोबिलिटी नहीं है, फीमेल मोबिलिटी चैलेंजिंग है, बट फार मच बेटर फ्रॉम पाकिस्तान फॉर वीमेन, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो ये बड़े मसले मसाइल हैं. किसी तरह दुआ करें कि 4 साल आपके वहाँ निकल जाएं किसी तरह. उसके बाद हो ना हो वो आपकी किस्मत. एटलीस्ट बच्ची कॉलेज चली जाए, 18 साल के बच्चे अमेरिका में बहुत बहुत अपने आप को संभाल लेते हैं. उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच होती है ज़िंदगी को लेके. उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई होती है. मैंने यहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी, मैं बच्चों से मिलता हूँ,
15 साल के बच्चे दे डोंट साउंड लाइक अ 15-year-old, वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं। तो ये इनका एनवायरनमेंट जो है ना बड़ा सॉलिड होता है इस मामले में कि बच्चा मेच्योर होता है। खुद ही तो बच्चे बस में स्कूल जा रहे होते हैं। अरे हमारे बच्चे खुद ही उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, माँ बाप सो रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, बच्चे खुद ही उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं। लाइक इतने इंडिपेंडेंट होते हैं। सो वंस योर डॉटर इज इन कॉलेज, तो देन एवरीथिंग सॉर्टेड, देन यू कैन ऑलवेज मूव बैक एंड देन फिर वो एक लॉन्ग डिस्टेंस दायर है। खैर वैसे भी बच्चे, इमेजिन अगर आप टेक्सास में हो और वो प्रिंसटन चली गई बेटी, तो वो फिर उतना ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है, नॉट एज डिस्टेंस, बट शी इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। अब वो चाहे आप कोलकाता में हो, न्यू जर्सी में हो, या आप टेक्सास में, न्यू जर्सी में हो, आएगी वो क्रिसमस और थैंक्स गिविंग हॉलीडे पे, राइट? तो या फिर ट्राई टू फाइंड अ हाइब्रिड मॉडल, वर्क इन बहामास, स्टे क्लोज टू अमेरिका, वर्क इन लाइक अर्न इन डॉलर्स एंड चिल करे जिंदगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं यही कहूँगा, डोंट मेंड समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। जब आएगी 60 दिन बहुत है। वंस यू हैव अ कंटिजेंसी प्लान, यू कैन ऑलवेज एक्ट अपॉन इट। और बाकी आई एम श्योर बहुत सारे NRIs हमें सुन भी रहे हैं। आई हैव अ वंडरफुल फ्रेंड इन सैन फ्रांसिस्को, ही इज़ अ रेगुलर व्यूअर ऑफ, वीव मेट, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। सो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना, वो भी टेक सेक्टर में है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और जितने दूसरे NRIs या जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अगर सुन रहे हैं, हु आर ऑन द सेम बोर्ड मोर और लेस, और हु हैव गॉन थ्रू द सेम बोर्ड, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा। अगेन, परेशानी की बात नहीं है, जब आएगी देखी जाएगी। कंसर्न बहुत लेजिट है, लेजिटिमेट है, और होना भी चाहिए। कंटिजेंसी प्लान इसी तरह बनते हैं कि आपको हर हर ऑड्स जो है ना वो मेजर करने होते हैं कि ज़िंदगी में ये भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकती है। सो एम आई कवर्ड फॉर दोज एरियाज? सो दैट इज़ अ गुड वे टू लुक एट थिंग्स। बट उस एंग्जाइटी में जो है ना, उससे आपकी सेहत ख़राब होगी, एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, नथिंग विल बी गुड अराउंड यू, एंड देन फिर रिलेशनशिप्स भी सफ़र करती हैं। सो लेट्स होप वी डोंट गो थ्रू ऑल दैट, एंड जस्ट हैव अ प्लान रिटन, एंड हल्ली वल्ली देखी जाएगी जब आएगा तो, ठीक है। एंड आई होप यू सिक्योर योर रेजिडेंसी तो आपके पास है, योर सिटीजनशिप वेरी वेरी सून, ताकि ये खल्ली वल्ली हो जाए प्रॉब्लम। बाकी ये कि अभी ट्रम्प आ रहा है, भाई लोग ज़रा ये भी बताएं, ट्रम्प आ रहा है, हाउ डू यू सी दीज चेंजेस? मतलब हाउ डू यू सी ये माइग्रेशन वाले सिलसिले कैसे चलेंगे? क्योंकि ये जो सेंटिमेंट अब चल पड़ा है ना पूरी दुनिया में, ये बड़ा ख़तरनाक है। अगले 5 साल मुझे बड़े डिपोर्टेशन वाले और क्राइसिस वाले और ये क्लैशेस वाले दिख रहे हैं। कलेश बहुत होने जा रहा है आने वाले वक्तों में। तो आप लोग भी बताइएगा कि ट्रम्प किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है इस तरह की चीज़ों को। गुड लक, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।